બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. શરૂ અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. સમસ્ત પ્રશંસા એ અલ્લાહ માટે જ છે જે આ સૃષ્ટિનો રચનાકાર અને પાલનહાર છે. અને સલામ તેના એ બધા બંદાઓ ઉપર જે સમયે સમયે આ ધરતી ઉપર આવતા રહ્યા અને માનવતાનું માર્ગદર્શન કરતા રહ્યા. અને સલામ તેના છેલ્લા ઈશદૂત હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પર જે માનવતા માટે દયા અને કૃપાના પ્રતીક બનાવીને મોકલવામાં આવ્યા. મહાનુભાવ, કુરાનમાં અલ્લાહ ફરમાવે છે, આઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ, બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, કુલ્લુ નફ્સિન ઝાયકતુલ મૌત. દરેક જીવ મૃત્યુનો સ્વાદ ચાખનાર છે. માનવાઓ, આ જીવનની જે અટલ સચ્ચાઈ હોય, જેને શાશ્વત સત્ય પણ કહી શકાય, તે છે મૃત્યુ. જીવનમાં કોઈ વસ્તુ આવે કે ના આવે, મૃત્યુ તો આવવાની જ છે. અને મનુષ્ય ધનિક હોય, પૈસાદાર હોય, વૈજ્ઞાનિક હોય, ડૉક્ટર હોય કે કંઈ પણ હોય, તે પોતાની જાતને મૃત્યુથી નથી બચાવી શકતો. અને આજની આ વર્તમાન કોવિડની પરિસ્થિતિમાં તો એ વાત સાબિત થઈ ગઈ છે કે મૃત્યુ ઉપર કોઈ વિજય પ્રાપ્ત નથી કરી શકતો. પરંતુ આ મૃત્યુ છે શું? અને મૃત્યુ પછી શું થવાનું? ક્યાં જવાના આપણે? આ પ્રશ્ન તો આવતો જ હશે. અને આ પ્રશ્ન બધાને મૂંઝવે છે. મૃત્યુ પછી શું આપણે માટી થઈ જવાના? અંત થઈ જવાનો? આપણે કબરમાં જઈને તેની માટી સાથે આપણી માટી ભળી જવાની? અથવા આપણી ચિતાના રાખ થઈ અને આ વાયુમંડળમાં વિલીન થઈ જવાના? જો આવું હોય તો પછી આ જીવનનો અર્થ શું રહ્યો? આ જીવનમાં જે આપણે સારા અને નરસાની એક બુદ્ધિ આપણને આપવામાં આવી છે, કોઈ કામ સારું છે કે ખોટું છે એની એક સમજ આપણને આપવામાં આવી છે, એક ચોકી છે, પોલીસ ચોકી, જે આપણી અંદર અંતરાત્માની સ્વરૂપે આપણે અંદર છે, કે જે આપણે તરત ટોકે છે કે આ વસ્તુ સારી છે અને આ વસ્તુ ખોટી છે. એ આપણને દરેક વખતે એના માટે આપણે કહે છે. તો શું આ બધું નકામું છે? મૃત્યુ પછી એ માટી જ થઈ જવાનું હોય તો આ બધાનો અર્થ શું રહ્યો? પછી તો એક વ્યક્તિ જે બહુ દુર્ગુણો સાથે જીવે છે, અત્યાચાર કરે છે, શોષણ કરે છે અને બહુ એશથી જીવે છે અને સારી રીતે જીવીને મરી જાય છે. અને એક વ્યક્તિ જે સત્કાર્યોમાં જ રાખેલી હોય અને જેને ખાવા માટે પૂરતું અન્ન પણ ના મળતું હોય, પણ સત્કાર્યોમાં જ હોય અને એવી રીતે જે મૃત્યુને પામે, એ બંને એક જ થઈ જવાના? જો આવું હોય તો પછી ઈશ્વરનો અર્થ જ શું રહ્યો? ઈશ્વર એટલો બધો જાલિમ તો નથી કે આ બધા વ્યક્તિઓનો એક જ અંત હોય કે બધા માટી થઈ જવાના હોય. ના, એવું નથી. મૃત્યુ તો એક બહુ સુંદર વસ્તુ છે. મરણ બહુ રૂપાળું છે. આ મરણ તો એક નવા જીવનનો દ્વાર ખોલનાર છે, દ્વાર ઉઘાડનાર છે. અને એટલા માટે જ તો ગુજરાતી કવિ મનોજ ખંડેરિયા કહે છે કે ખબર હોતી કે આવું રૂપાળું છે તો ન ભાગત, સતત નાહકનું વાંસે તે મરણ દઈ અમને દોડાવ્યા. તો આ બહુ રૂપાળું છે આ મૃત્યુ. પણ આ રૂપાળું મૃત્યુ ત્યારે જ હોઈ શકે જ્યારે આપણને ખબર હોય કે આ મૃત્યુ પછી શું થવાનું છે. એના પછી આપણે કેવી રીતે આપણા કર્મોના હિસાબ આપવાના છે અને કેવી રીતે એ કર્મોના આધારે કંઈક પરિણામ આવવાનું છે. એ પરિણામ હોય તો આ મૃત્યુ ખરેખર રૂપાળું છે. અને એટલે જ કુરાનમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે વલ તંઝુર નફ્સુમ મા કદ્દમત લેગદ, કે દરેક જીવ એ જુએ કે તેને કાલ માટે, આવતીકાલ માટે શું પ્રયત્નો કર્યા છે, શું તૈયારી કરી રાખી છે. આ આવતીકાલ એટલે મૃત્યુ. તો આ મૃત્યુ માટે આપણે શું તૈયારી કરી રાખેલી છે કે જ્યારે મૃત્યુ આવશે તો એના પછી
આપણે આ જીવનને સાર્થક સિદ્ધ કરી શકીએ એના માટેના પ્રયત્નો થવા જોઈએ. અને એટલા માટે જ આજે જમાતે ઇસ્લામી હિન્દ દ્વારા આ એક ઓનલાઈન પરિસંવાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને આમાં આપણે જુદા જુદા ધર્મોના વિદ્વાનોને સાંભળીશું કે મૃત્યુ પછી ખરેખર શું થવાનું છે, કેવી રીતે આપણે ઈશ્વર સમક્ષ જઈને આપણા હિસાબો આપવાના છે. આ સાંભળીને આપણે એના પર મનન કરીએ, ચિંતન કરીએ અને આ જીવનને સાર્થક બનાવવાના પ્રયત્નો કરીએ. આ જીવનના અને મૃત્યુના સત્યને જાણવાના પ્રયત્નો કરીએ. અને એના માટે જ આ એક પરિસંવાદ લઈને અમે આપણી પાસે આવ્યા છીએ. આજે આ પરિસંવાદમાં જુદા જુદા ધર્મોના વિદ્વાનો આપણી સમ્મુખ કેટલીક વાતો કરવાના છીએ. અને એમાં બ્રહ્માકુમારી નંદાબેન છે, અને આર્ય સમાજ વાનપ્રસ્થ સાધક આશ્રમના સ્વામી મુક્તાનંદ પરિવ્રાજક સાહેબ છે, આધ્યાત્મ વિદ્યા મંદિરના સ્વામી વિદિતાત્માનંદ છે, અને જમાતે ઇસ્લામી હિન્દ ગુજરાતના પ્રમુખ શકીલ અહેમદ રાજપૂત સાહેબ છે. તો આવો આપણે આ બધાની વાણીઓ સાંભળીએ અને સત્યનું વિવેચન કરીએ. સૌપ્રથમ હું આમંત્રણ આપીશ બ્રહ્માકુમારી નંદાબેનને, જે સિનિયર રાજયોગ ટીચર છે ઝોનલ હેડક્વાર્ટરના. એમને હું વિનંતી કરીશ કે તે આ જે વિષય છે મૃત્યુ પછી શું, એના વિશે આપણે પોતાના ધાર્મિક વિચારો રજૂ કરે અને सत्य ने समझावाना प्रयत्न करें. ओम शांति. आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रही हूँ. बहुत ही एक सुंदर विषय के साथ आज हम सभी विचार विमर्श करने बैठे हैं कि मृत्यु के बाद क्या. हम सभी भली भांति जानते हैं कि ये सृष्टि एक रंगमंच है. यहाँ आना और जाना लगातार चलता ही रहता है. जब हम आते हैं जिसको कहते हैं जन्म, और जाते हैं उसको कहते हैं मृत्यु. और ये जो पूरा ये आगमन का जो चक्र है उसमें आत्मा, जिसे हम कहते हैं रूह, चैतन्य, एक अजर अमर अविनाशी एक चैतन्य शक्ति है, वही इस पूरे चक्र के अंदर अपना पार्ट प्ले करती है. ये जो आगमन का चक्र है जिसको जीवन और मृत्यु कहा जाता है. जब जन्मते हैं तब खुशी होती है, लेकिन जब मृत्यु होती है तब व्यक्ति दुखी हो पड़ता है. जैसे हम रोज वस्त्र बदलते हैं लेकिन कभी दुखी नहीं होते हैं कि क्यों हम रोज सवेरे उठ कर के नहा धो कर के वस्त्र बदलते हैं. लेकिन एक नित्य कर्म है जो हम सवेरे उठ कर के स्नान आदि करके नया वस्त्र पहनते हैं. ठीक उसी प्रकार जब हम इस संसार में आते हैं तो एक शरीर रूपी वस्त्र हम धारण करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन, एक मोटर, या तो एक कहते हैं कि एक डिब्बी जिसमें एक हीरा है, जिसको कहते हैं एक अविनाशी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, एक रूह निराकार जो इस डिब्बी में, इस मोटर में विराजमान होकर के ये सृष्टि चक्र के अंदर अपना पार्ट या कर्म करती है. अज्ञानतावश हम अपने आप को भूलने के कारण हम बहुत ही दुखी हो पड़ते हैं. जब जीवन की बात आती है या जन्म की बात आती है तो हम खुशी से फूले नहीं समाते, लेकिन जैसे ही मृत्यु की बात आती है तो हम बहुत ही डर भय में आ जाते हैं. क्यों? देखिए, कहते हैं कि संसार एक मुसाफिर खाना है. आज अगर हम बॉम्बे से एक ट्रेन में बैठे हैं, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे पैसेंजर हैं. किसी को नवसारी उतरना है, किसी को सूरत, किसी को भरूच और किसी को अहमदाबाद. इस ट्रैवलिंग में हमारे अच्छे मित्र भी बन जाती है, लेकिन जैसे उसका स्टेशन आ जाता है तो उसको दुख नहीं होता है, बहुत खुशी से आओ बाय बाय कर देते हैं. लेकिन डेस्टिनेशन पर तो सभी को जाना ही है. ठीक उसी प्रकार यह भी एक कारवा है जहाँ एक व्यक्ति माना आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है तो व्यक्ति कहलाती है, और वो व्यक्ति के अनेक संबंध होते हैं. कहाँ वो किसी का पिता है, कहाँ किसी की वो माँ है, कहाँ भाई बहन, पति पत्नी, मामा मामी, चाचा चाची वगैरह हर संबंध से वो अपना कर्म करता है. लेकिन जैसे उसके कर्म यहाँ पूरे होते हैं वो शरीर छोड़ जाता है.
महत्व का प्रश्न क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न यह है कि मृत्यु के बाद क्या? हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि मृत्यु के बाद रूह कहाँ जाती है। हर एक धर्म के अंदर अपनी अपनी मान्यता है। जैसे कि 12-13 दिन में आत्मा उसी घर में रहती है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो हर एक के पार्ट को देखती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन 13वें दिन वो दूसरे स्थान पर चली जाती है जहाँ उसके कर्म लिखे हुए हैं। साइंस तो क्या, धर्म वाले भी मानते हैं पूर्ण जन्म के अंदर कि व्यक्ति मनुष्य योनि में ही वो जन्म लेता है। अगर उसके अच्छे कर्म है तो साहूकार घर में जन्म लेता है, अगर उसके बुरे कर्म है माना गरीब के घर में जन्म लेता है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म पर ही निर्भर करता है हमारे अच्छे संस्कार। तो हम अच्छे संस्कार करें और उस अच्छे संस्कार करने के लिए वर्तमान समय पर हमें हमारी सोच, हमारे विचार बहुत ही सकारात्मक रखने चाहिए। सभी के लिए कल्याण की भावना, सभी के लिए दुआएं, सभी के लिए भला सुख देने की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना, जिससे हर एक के दिल की दुआएं हमें प्राप्त होती है और इस दिल की दुआओं के साथ हमारा पुण्य का खाता अर्जित होता है और इसी पुण्य के अकाउंट से हमारा आने वाला जो दूसरा जन्म है उसमें हम अच्छे से अच्छे जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। अच्छा घराना, अच्छे साहूकार घर में, अच्छे सत्संग में हम अपने जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो दूसरे जन्म के लिए मृत्यु के बाद क्या, उसके लिए इस जन्म में उसकी कमाई, उसकी सोच सकारात्मक होनी आवश्यक है। ब्रह्मा कुमारीज की भी यही मान्यता है कि जैसा सोचेंगे वैसा ही हमको प्राप्त होगा। तो क्यों ना हम सभी सकारात्मक सोचें, शुभ सोचें, श्रेष्ठ सोचें, ताकि हमारे मृत्यु के पश्चात हमें बहुत ही अच्छा उसका शुभ फल मिले। रूह अविनाशी है, अजर है, अमर है, वो कभी मरती नहीं है, सिर्फ शरीर बदलती है और उसने अनेक शरीर बदली किए हैं। तो इस शरीर बदलने की प्रक्रिया में हम भी आज हमारे विशेष श्रेष्ठ संकल्प से पुनः हम अपने जीवन को सुखदायी, सुखमय और सदा काल के खजानों की प्राप्ति से हम अपने आप को भरपूर कर सकते हैं। तो आइए आज के इस सत्र में हमें अपने स्वयं की अनुभूति हो कि मैं एक रूह हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। ये मेरे निजी गुण है। मैं 7 स्वरूपों से संपन्न हूँ। जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ऐसे सामने वाले भी शांत स्वरूप है। और शांति के सागर पिता परमात्मा, जिसको अल्लाह, खुदा, बहुत अलग अलग नाम से उसको हम जानते हैं, पुकारते हैं, उस पिता परमात्मा को हम याद करते हैं जो शांति के सागर है। और उस शांति के सागर को याद करके अपने अंदर जो नेगेटिविटी है, कभी कमज़ोरी है, उसको हम याद करने से वो नेगेटिविटी हमारी चली जाती है और पूर्ण हमारे संस्कार बहुत ही शांतपूर्ण हो जाते हैं। तो यही एक बहुत ही शुभ विचार है कि मृत्यु के बाद पुनः आत्मा या रूह मनुष्य के तन में ही जन्म लेती है और वापस अपने कर्म श्रेष्ठ करके पुनः ये सृष्टि का चक्र चलता ही रहता है। जन्म और मृत्यु के इस खेल में हम आवागमन के चक्र में आते ही रहते हैं और इस आवागमन के चक्र को ही जीवन कहा जाता है। ओम शांति। હમણાં આપે બ્રહ્મકુમારી નંદાબેનને સાંભળ્યા, એમના વિચારોથી આપ લાભાન્વિત થયા હશો। હવે હું વિનંતી કરીશ આર્ય સમાજના વાનપ્રસ્થ સાધક આશ્રમના શ્રી સ્વામી મુક્તાનંદ પરિવ્રાજક સાહેબને કે તે આવે અને મૃત્યુ પછી શું આ વિષય પર પોતાના બહુમૂલ્ય વિચારો આપની સમ્મુખ મૂકે। आज हम मृत्यु के पश्चात क्या होता है उसके बारे में विचार करेंगे।
मृत्यु एक सत्य है, अपरिहार्य है। जिसने भी संसार में जन्म लिया है, कोई भी हो, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अनिवार्य है, अपरिहार्य है। अब हम सब जानते हैं कि जीवन और मृत्यु में अंतर क्या है। जब व्यक्ति जीवित रहता है, शरीर में आत्मा के धर्म प्रकट होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है, शरीर के धर्म तो रहते हैं, आत्मा के धर्म नहीं रहते। शरीर के धर्म कौन से हैं? शरीर का रूप है, चाहे जीवित शरीर हो चाहे मृत शरीर हो, रूप बना रहता है। शरीर का धर्म है, स्पर्श है, छू सकते हैं शरीर को, तो चाहे जीवित शरीर हो मृत शरीर हो, स्पर्श गुण उसमें रहता है। ऐसे ही अन्य गुणों को समझ लेना। लेकिन जो आत्मा के लक्षण है, इच्छा है, अनिच्छा है, प्रयत्न है, ज्ञान है, सुख दुख की अनुभूति है, निमेष, उन्मेष, मन का कार्य, ये सब तब तक रहते हैं जब व्यक्ति जीवित है। मृत शरीर में ये इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान आदि दिखाई नहीं देते। इससे हम पता करते हैं ये मृत शरीर है और ये जीवित शरीर है। तो मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद शरीर से आत्मा अलग हो जाती है। शरीर यहाँ पड़ा रहता है, आत्मा निकल जाती है। वैदिक धर्म में, वैदिक दर्शनों में यह बताया गया, हमारे पास जो सूक्ष्म शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, ये सब आत्मा के साथ शरीर से निकल जाती है। और निकलने के बाद क्या होता है? शरीर तो यहीं पर रह जाता है। उसको भस्म करने के लिए वेद का विधान है, वायुरनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। शरीर भस्मांत है, लेकिन जो आत्मा निकल गई है, जिसके साथ मन, बुद्धि, इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर है, उसकी क्या गति होती है? उसके लिए शास्त्र, वेद, दर्शन, उपनिषद, समस्त वैदिक वाङ्मय यही कहता है, और युक्ति, तर्क, प्रमाण, वैज्ञानिक सिद्धांत में यही कहता है कि जीवन भर इस शरीर में रहते हुए जो कर्म किया है, उसी कर्म के अनुसार उसकी गति होती है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर पुण्य कर्म किया है, ऋषियों का ये सिद्धांत है, वेद का ये सिद्धांत है, जिन्होंने जीवन भर अधिक पुण्य किया है, कम पाप किया है, उसको मनुष्य जन्म मिलता है। 50% से अधिक यदि पुण्य किया है तो उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। जितना अधिक पुण्य है उतना ही ऊंचे स्तर का जीवन मिलता है, माता पिता मिलते हैं, वैसे उसका निवास होता है। और जिन्होंने 50% से अधिक पाप किया है, उसको पशु पक्षी, और ज्यादा पाप करे तो कीट पतंग, कीड़े मकोड़े का जन्म मिलता है, और ज्यादा पाप करे तो उसको वृक्ष की योनि मिलती है, स्थावर बन जाता है। तो मरने के बाद जीवन भर में मनुष्य ने जो कर्म किया है, उसके आधार पर उसको अगला जन्म मिलता है। जब माता पिता और जन्म लेने वाली आत्मा, तीनों का जब कर्म मेल होता है, उसके आधार पर अगला जन्म मिलता है। और जो पशु पक्षी कीट पतंग योनि में जाते हैं, वहां उनको कोई स्वतंत्र कर्मफल, कर्म अनुष्ठान करने का प्रावधान नहीं है। पशु पक्षी कोई कर्म करते हैं तो उनको पाप पुण्य नहीं लगता है, लेकिन मनुष्य जो भी कर्म करता है, जिसके द्वारा दूसरों को दुख देता है, सुख देता है, उसको पाप पुण्य
प्राप्त होते हैं। शेर मांस खाए तो उसको पाप नहीं लगेगा, मनुष्य मांस खाए तो उसको पाप लगेगा। मनुष्य का भोजन शाकाहार है। तो ऐसे ही जिन्होंने जीवन भर धर्म का आचरण किया, पुण्य का आचरण किया, उसको श्रेष्ठ योनि मनुष्य जन्म और जिसमें अधिक से अधिक सुख होता है वैसे जन्म मिलता है। साधारण यदि 50-50% पाप पुण्य हुआ तो उसको सामान्य परिवार में जन्म मिलता है, मनुष्य जन्म मिलता है। और अधिक पुण्य हो तो धन संपत्ति से युक्त परिवार में जन्म मिलता है। और अधिक पुण्य हो तो उसको राजा महाराजा, आज की भाषा में कहे तो मंत्री आदि के परिवार में जन्म होता है, प्रशासक वर्ग में जन्म होता है। और अधिक हो तो उसको विद्वानों के घर में जन्म मिलता है। और जो व्यक्ति पाप नहीं करता है, समस्त क्लेशों को नष्ट कर दिया है, केवल निष्काम कर्म करता है, पुण्य कर्म ही करता है, उसका और अगला जन्म नहीं होता है, वो मुक्ति में जाता है। ये हमारा वैदिक कंसेप्ट है, वैदिक सिद्धांत है। कर्मों के आधार पर जन्म मिलता है और उन कर्मों के पीछे जिसका क्लेश है वही व्यक्ति जन्म लेता है। जिसका कोई क्लेश नहीं है वो मुक्ति में जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। संक्षेप में इस विषय को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ओम। આપણે અત્યારે સાંભળી રહ્યા હતા આર્ય સમાજના સ્વામી મુક્તાનંદ સાહેબને. એમના બહુમૂલ્ય વિચારો આપણે સાંભળ્યા અને એ ખરેખર મનન કરવા યોગ્ય છે. હવેના પછીના વક્તા છે આધ્યાત્મ વિદ્યા મંદિરના સ્વામી વિદિતાત્માનંદજી. હું એમને વિનંતી કરું છું કે મૃત્યુ પછી શું આ વિષય ઉપર પોતાના બહુમૂલ્ય વિચારો ધર્મની ના પ્રકાશમાં આપણી સમ્મુખ મૂકે, જેથી આપણે એના ઉપર મનન કરી શકીએ. નમસ્કાર. મૃત્યુ પછી શું આ પ્રશ્ન છે અને મનુષ્ય માત્ર માટે આ એક પ્રશ્ન રહેલો જ છે, કારણ કે મૃત્યુ આપણા જીવનની એક અત્યંત રહસ્યમય ઘટના છે અને દરેક માનવીને કુતૂહલ હોય જ છે કે મૃત્યુ પછી મારું શું થશે. તો ચાલો હિન્દુ શાસ્ત્રો આ વિશે શું કહે છે આપણે સંક્ષેપમાં જોઈએ. પહેલાં એ પ્રશ્ન પૂછીએ કે મૃત્યુ એટલે શું, કોનું મૃત્યુ થાય છે. તો હિન્દુ શાસ્ત્રો કહે કે મૃત્યુ તો દેહનું થાય છે અને આ દેહને ધારણ કરનાર એક આત્મા છે જે અમર છે. આ ઘટના સમજાવતા ભગવદ્ ગીતામાં દૃષ્ટાંત આપ્યું કે જેવી રીતે કોઈ માણસ જૂના થયેલા વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરે અને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે, તેવી રીતે આત્મા પણ એક દેહનો ત્યાગ કરે છે અને બીજો દેહ ધારણ કરે છે. આનું નામ મૃત્યુ. અર્થાત દેહનું જ મૃત્યુ છે, આત્માનું મૃત્યુ નથી. એટલે આમ જોવા જઈએ તો હિન્દુ ધર્મ મૃત્યુ નામની કોઈ ઘટના સ્વીકારતો જ નથી. માત્ર અસ્તિત્વનો પ્રકાર બદલાય છે. જીવાત્મા એક દેહમાંથી બીજા દેહમાં પ્રયાણ કરે છે. એ નક્કી કેવી રીતે થાય? એ પાછા હિન્દુ શાસ્ત્રો કર્મનો સિદ્ધાંત સમજાવે છે કે કર્મ પ્રમાણે આ થતું હોય છે. આપણે સતત કોઈને કોઈ કર્મ કરતા હોઈએ છીએ, શરીરના સ્તરે, વાણીના સ્તરે, મનના સ્તરે. એ દરેકે દરેક કર્મ આપણા મન પર કંઈક સંસ્કાર કે છાપ છોડતું જાય. સાથે સાથે દરેકે દરેક કર્મ પોતાનું પરિણામ આપે, જેને કર્મફળ કહેવાય. સારું કર્મ હોય એને પુણ્ય કર્મ કહેવાય, ખરાબ કર્મ કરીએ પાપ કર્મ કહેવાય.
પુણ્ય કર્મનું પરિણામ સુખ આવે, પાપ કર્મનું પરિણામ દુઃખ આવે. આમ જીવન દરમિયાન આપણે જે અસંખ્ય કર્મો કર્યા હોય એમાં કેટલાક કર્મોના ફળ આપણે આ જીવનમાં જ ભોગવી લીધા હોય અને ઘણા બધા કર્મના ફળ એવા હોય જે ભોગવવાના બાકી રહી ગયા હોય એ આપણા ખાતામાં જમા થાય અને આપણું જ્યારે અહીંનું જીવન પૂરું થાય ત્યારે એ બધા કર્મ આપણી સાથે આવે. આપણા ખાતામાં પુણ્ય કર્મનો અધિકતા હોય તો ભવિષ્યમાં આ જન્મ પછી આપણને એવો જન્મ મળે જ્યાં સુખ ભોગવવાનું હોય. કદાચ બહુ પાપ કર્મ કર્યા હોય એવો જન્મ મળે જ્યાં દુઃખ ભોગવવાનું હોય. એટલે હિન્દુ શાસ્ત્રો પણ સ્વર્ગ નરક બધી વાતો કરે છે, પણ એક અગત્યની વસ્તુ એ છે કે આ કોઈ વસ્તુ પરમેનન્ટ નથી, હંમેશ માટેની નથી. કદાચ કોઈ જીવાત્મા સ્વર્ગમાં જાય પણ ખરો, પણ પોતાના પુણ્ય કર્મમાં પૂરા થાય એટલે વળી પાછો અહીંયા આવે. તેવી રીતે કદાચ પાપ કર્મને કારણે એવી કોઈ યોનિ પ્રાપ્ત થઈ હોય, કોઈ નરક પ્રાપ્ત થયું હોય તો એ કર્મ પરિણામ પૂરું થયા પછી વળી પાછો આ મનુષ્ય દેહમાં આવે અને પોતાની યાત્રા શરૂ કરે. કારણ કે હિન્દુ ધર્મ પુનર્જન્મમાં માને છે, પૂર્વજન્મ અને પુનર્જન્મ. અને તેથી જ્યાં સુધી આપણે આપણા જીવનનું કલ્યાણ ન કરીએ ત્યાં સુધી આ જન્મ મૃત્યુની ઘટમાળાનો અંત આવતો નથી. એનો અર્થ એ થયો કે પ્રત્યેક મનુષ્ય જીવનનું કોઈ ધ્યેય લઈને આવેલો છે અને તમારું મારું અને સર્વનું એક જ ધ્યેય છે અને એ ધ્યેય છે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવાનું. ચાલો ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાનું. અને આપણે જેનું એ ધ્યેય કેમ પ્રાપ્ત કરી શકીએ એમણે શાસ્ત્રો આપણે માર્ગદર્શન આપે છે, કેવું જીવન જીવવું જોઈએ. એ પ્રકારે જીવન જીવીએ તો આપણે આપણા ધ્યેયની દિશામાં આગળ વધીએ. હા, એક જન્મ તો પર્યાપ્ત નથી, પૂરતો નથી. દરેક જન્મમાં આપણે થોડી થોડી યાત્રા કરતાં 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 છેવટે આપણે આપણા જીવનના ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરીએ. અને ત્યારે એવું મૃત્યુ થાય જે પછી કોઈ જન્મ ના હોય. એટલે બે પ્રકારના મૃત્યુની વાત થઈ. એક મૃત્યુ એવું છે જે સામાન્ય રીતે આપણે પ્રાપ્ત થાય, જે મૃત્યુ પછી બીજો જન્મ થાય, કારણ કે હજી આપણે જીવનનું ધ્યેય પર પહોંચ્યા નથી. બીજું મૃત્યુ એવું છે કે જીવનનું ધ્યેય પહોંચી ગયા, હવે કોઈ આવા મર્યાદિત જન્મની જરૂર નથી અને ત્યારે આપણે પૂર્ણતામાં પ્રતિષ્ઠિત થઈએ. તેને શાસ્ત્રમાં મોક્ષ એવું કહેવામાં આવે છે. એ આપણે સિદ્ધ કરીએ તો પછી આ જન્મ અને મૃત્યુની ઘટમાળામાંથી હંમેશ માટે મુક્ત થઈએ અને અનંત સુખમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈએ. આ જાતની દૃષ્ટિ આપણને હિન્દુ ધર્મ આપે છે. એટલે કે મૃત્યુ પછી શું એ પ્રશ્ન તો થયો, પણ આ મૃત્યુની ઘટનાને ખૂબ સમજવાની જરૂર છે. તો આપણે જીવન કેમ જીવવું એ પણ સમજી શકીએ. એટલે હા, હિન્દુ શાસ્ત્રમાં પણ મૃત્યુની ખૂબ બધી ચર્ચાઓ છે, એની ના નહીં, પણ છતાંય પણ મૃત્યુ પછી શું થાય છે ને કયા લોક છે, બહુ ચર્ચાઓ છે. પણ મોટે ભાગે હિન્દુઓ એને બહુ મહત્ત્વ નથી આપતા. અને શું બોધ લેવો અને કેમ જીવન જીવવું એ મહત્ત્વનું માને છે હિન્દુઓ. અને આ રીતે મૃત્યુ પછી હમણાં સ્વામી વિદિતાત્માનંદજી બહુ સુંદર શૈલીમાં પોતાના વિચારો રજૂ કરી રહ્યા હતા. આપણે ખરેખર લાભાન્વિત થયા. અને હવે અંતમાં હું જમાતે ઇસ્લામી હિન્દ ગુજરાતના પ્રમુખ શકીલ અહેમદ રાજપૂત સાહેબને વિનંતી કરીશ કે ઇસ્લામ ધર્મના પ્રકાશમાં મૃત્યુ પછી શું એ વિશે આપણને જ્ઞાન આપે અને એના માટે આપણને પ્રકાશ આપે.
शकील अहमद राजपूत साहब। ईश्वर के नाम से जो अत्यंत कृपाणु और दयालु है। कुरान मजीद में ईश्वर फरमाते हैं, अहसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसौ व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुमने ये समझ रखा है कि हमने तुम्हें यूं ही पैदा कर दिया है? क्या तुम्हें लौट कर वापस हमारी तरफ नहीं आना है? मेरे प्यारे भाइयों, हम जानते हैं कि जीवन को सार्थक और निरर्थक बनाने में दृष्टिकोण का, विचारधारा का और श्रद्धा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक उदाहरण से इस बात को यूँ समझिए, एक बच्चा जो आग को देखता है वो उसे एक चमकता हुआ खिलौना समझता है। उसका ये कॉन्सेप्ट उसके अंदर एक मोमेंट पैदा करता है कि वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है और उसका परिणाम भी फिर वो भुगतता है। एक और दूसरा व्यक्ति है जो उस आग की शक्ति को देखता है और उसकी शक्ति को देखकर उसके सामने नतमस्तक हो जाता है, उसे कोई देवी शक्ति समझता है और उसकी वजह से उसके जीवन में श्रद्धाएं पैदा हो जाती हैं। एक तीसरा व्यक्ति है जो उसी आग को देखता है, उसके प्रकाश को और उसकी गर्मी को उसका अनुभव करता है और उसका इस्तेमाल करता है और अपने जीवन में तरक्की करता है। आग के प्रति व्यक्ति जो विचारधारा बनाता है, जो दृष्टिकोण बनाता है, उस दृष्टिकोण के अनुसार वो कर्म करता है और उस कर्म के अनुसार उसका परिणाम आता है। मृत्यु के संबंध में भी व्यक्ति की विचारधारा का और उसके दृष्टिकोण का उसके जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। साइंस इस बात को अभी नहीं बता पाया है कि लाइफ और डेथ, जीवन और मृत्यु ये कैसे शुरू होते हैं, ये इसकी वास्तविकता क्या है। धर्म ने इस संबंध में हमें कुछ मार्गदर्शन दिया है। हम जब ये देखते हैं कि मृत्यु पश्चात जीवन है या नहीं, 2-3 तरह के कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे समाज में पाए जाते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है ये जीवन है, एक्सीडेंटली एक लाइफ पैदा हो गई है और आदमी को एक निश्चित समय तक यहाँ रहना है और फिर ख़त्म हो जाना है। एक दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, बार बार हमें यहाँ जन्म लेना है और हम अपने कर्म, अच्छे कर्म कर कर फिर उससे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि व्यक्ति को एक ही जीवन मिला है और उसके कर्मों के अनुसार फिर उसका हिसाब किताब लिया जाएगा और उसे उसके कर्मों के अनुसार फिर स्वर्ग या नरक में उसे भेजा जाएगा। 3 कॉन्सेप्ट हैं, 3 विचारधाराएं हैं, तो उनके असरात भी, उनके प्रभाव भी जीवन पर अलग होते हैं और उनके परिणाम भी अलग होते हैं। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं इस्लाम के बारे में जीवन के पश्चात जो मृत्यु है या मृत्यु के पश्चात जो जीवन है उसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। कुरान मजीद ने इस जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उसके रहस्य पर न प्रकाश डालते हुए ये बात कही है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने जीवन और मृत्यु इसलिए बनाई है, इसलिए उनका सर्जन किया है ताकि हम देखें कि तुम में कौन लोग अच्छे कर्म करते हैं। तो मालूम ये हुआ कि जीवन जो है इसकी हैसियत और इसकी वास्तविकता एक परीक्षा खंड की है। ये हमारे लिए परीक्षा की जगह है। हम यहाँ पर जैसा कर्मों के रूप में जो कुछ पेपर हम यहाँ लिखेंगे उसी के अनुसार परिणाम हमको आने वाले जीवन में मिलना है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने श्रद्धा को और अपने कर्मों को सच्चाई पर कायम करें, उसकी स्थापना सच्चाई पर हो ताकि हमारा जीवन भी सार्थक हो और पारलौकिक जो जीवन है उसमें भी हम सफल हो जाएं। परीक्षा इसलिए ली जाती है ताकि आदमी के पद और उसकी प्रतिष्ठा में इजाफा हो, उसको कुछ इनाम दिया जा सके या खरे और खोटे की पहचान की जा सके। ईश्वर ने इस दुनिया को परीक्षा खंड इसलिए बनाया ताकि व्यक्ति ईश्वर के प्रति कितना श्रद्धावान है,
कितनी समर्पण भावना रखता है, इसकी परीक्षा की जा सके और अपने इस समर्पण भावना, अपने इन कर्मों के अनुसार वो सजा या जा पा सके, वो स्वर्ग या नरक में जा सके। और ये परीक्षाएं हैं कि विविध प्रकार से इंसान को आजमाया जाता है। कभी संकट आते हैं, कभी विकट परिस्थितियाँ आती हैं, कभी मानवीय और कुदरती आपत्तियाँ आती हैं। विविध प्रकार के ये ईश्वर के तरीके हैं कि वो इंसानों की परीक्षा लेता रहता है। कुरान मजीद हमें ये बताता है कि जिस तरह व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसी तरह एक दिन आएगा कि ये पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर ईश्वर सारे इंसानों को जीवित करेंगे, जिसे कुरान पुनर्जीवन कहता है। कुरान मजीद ने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो पुनर्जन्म का नहीं है, पुनः जीवन का है, और सबको खड़ा किया जाएगा। कोई किसी भी स्वरूप में उसकी मृत्यु हुई है, वो उसको दफन किया गया हो मिट्टी में, या उसको आग में जलाया गया हो, या उसको मच्छियाँ खा गई हों, या किसी भी फॉर्म में वो मरा हो, उस दिन ईश्वर सबको सशरीर उनके शरीर के साथ उनको फिर से खड़ा करेगा, और फिर हर फर्द को, हर व्यक्ति को अकेले अकेले अपने कर्म का हिसाब किताब देना होगा। हिसाब किताब के बाद उनके जैसे कर्म होंगे, उनके कर्मों के अनुसार, उनकी श्रद्धा के अनुसार ईश्वर जो है उनको स्वर्ग में या नरक में डालेंगे। ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि ईश्वर जो हिसाब किताब लेंगे, उस हिसाब किताब में सिर्फ अच्छे कर्मों ही को नहीं देखा जाएगा, बल्कि उन अच्छे कर्मों के पीछे इंटेंशन क्या था, नीयत क्या थी, उसके अनुसार फैसला किया जाएगा। ये बात भी याद रहनी चाहिए कि ईश्वर हर व्यक्ति से जब हिसाब किताब लेगा तो उसके ज्ञान, उसकी बुद्धि और उसको जो शक्ति दी गई थी, उसके अनुरूप और उसके अनुसार उससे हिसाब किताब लिया जाएगा। और जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा में और अपने कर्मों के हिसाब से खरा उतरेगा, सच्चाई पर उतरेगा, ईश्वर उसको स्वर्ग में भेज देंगे। और जिसने ईश्वर से बगावत की होगी, जिसने कुकर्म किए होंगे, ईश्वर उसको नरक में भेज देंगे। कुरान ये बताता है कि स्वर्ग और नरक का जीवन ये शाश्वत जीवन होगा, ये अनंत जीवन होगा। जो जीवन हम जी रहे हैं, ये लौकिक जीवन, ये सीमित जीवन है, और मृत्यु के पश्चात का जो जीवन है वो शाश्वत जीवन है। व्यक्ति को चाहिए कि अपने शाश्वत और अनंत जीवन को बनाने के लिए अपने इस छोटे से जीवन को छोटे से जीवन पर उसको प्रधानता ना दे, उसको प्राथमिकता ना दे, बल्कि जो बाकी रहने वाला जो जीवन है उसी को प्राथमिकता दे, और जो चीज़ वहाँ के लिए बेहतर हो सकती है, श्रेष्ठ हो सकती है, ऐसे ही कार्य, सारे कर्म इस संसार के अंदर करे। कुरान मजीद ये कहता है, मिन्हा खलकनाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी ज़मीन से हमने तुम्हें पैदा किया, इसी ज़मीन में तुम लौटाए जाते हो, और फिर इसी ज़मीन से हम तुम्हें दोबारा निकाल के खड़ा करेंगे। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए, किसी शक और शुबे में, किसी शंका में नहीं रहना चाहिए। वो व्यक्ति जो मृत्यु के पश्चात जीवन का इनकार करते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ देर के लिए मान लें कि मृत्यु के पश्चात कुछ भी नहीं है। तब भी आप देखें कि एक व्यक्ति जो मृत्यु के पश्चात एक जीवन की धारणा रखता है और उस जीवन में सफल होने के लिए यहाँ पर नैतिक सिद्धांतों की पालन करता है और अच्छे कर्म करता है, तो उससे उसकी दुनिया कम से कम अच्छी बनती है। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि मृत्यु, और जैसे कि ये वास्तविकता है कि मृत्यु के पश्चात असीम जीवन है, अगर उस जीवन में सफल होने के लिए जो सिद्धांत ज़रूरी हैं, अगर व्यक्ति ने उनके अनुसार जीवन नहीं जिया होगा, तो ये छोटा सा जीवन तो वो जैसे तैसे उसका गुजर जाएगा, लेकिन वो हमेशा की ज़िंदगी उसके लिए यातना में हो जाएगी। इसलिए कुरान मजीद ये कहता है कि सफल व्यक्ति वो है जो उस दिन नरक से बचा लिया जाए और स्वर्ग में दाखिल कर दिया जाए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, हमें ज्ञान प्रदान करे, और सच्चाई को जानने और समझने और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने का शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। બહુ આભાર શકીલ અહેમદ રાજપૂત સાહેબ, આપે બહુ સારી શૈલીમાં ઇસ્લામનું મૃત્યુ પછી શું એના ઉપર પ્રકાશ નાખ્યો। આ બધા મહાનુભાવોને આપણે સાંભળ્યા। હવે આપણું કામ છે કે આપણે આ સત્યનું વિવેચન કરીએ, એના ઉપર મનન કરીએ અને
ખરેખર મૃત્યુ પછી શું થવાનું છે એના માટે વિચારીએ, જેથી આપણું જીવન સાર્થક થઈ શકે. આ તકે હું આપ સૌનો આભારી છું કે આવા એક ગૂઢ અને શુષ્ક વિષય ઉપર આપે અમને સાંભળ્યા અને જીવન વિશે આપ ચિંતિત છો એની એક સાબિતી આપી. હું આપ સૌનો આભારી છું અને સાથે સાથે હું આભારી છું આ તમામ ધાર્મિક મહાનુભાવોના, બ્રહ્માકુમારી શ્રી નંદાબેન, આર્ય સમાજના સ્વામી મુક્તાનંદ પરિવ્રાજક સાહેબ અને આધ્યાત્મ વિદ્યા મંદિરના સ્વામી વિદિતમાનંદજી અને જમાત ઇસ્લામીના શકીલ અહેમદ રાજપૂત સાહેબ. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આપણે વિરામ લઈએ અને આના ઉપર વિચાર અને મનન કરીએ અને પાછા ક્યારેક આપણે આવા જ એક સારા વિષય સાથે મળીશું અને ધાર્મિક મહાનુભાવોના નિવેદનો સાંભળીશું. વ આખિર દાવાના અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન.